हाय दोस्तों, मेरा नाम रजत है। आई हैव अबाउट 4 years of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। आई एम ऑल्सो अ मेंटर। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा न्यूटन स्कूल के बारे में बताऊंगा एंड देन विल जंप टू लर्निंग। Newton School is a platform which prepares you for a career in tech. It has courses designed for freshers, working professionals, and women with no technical background. Newton School first trains you for 6 months and helps you become amazing full stack developers. It also has a network of more than 300 great companies who hire from Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students are placed with some of the best companies in the country. And the best part is, Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything unless and until you are placed with a minimum 5 lakh CTC. And Launchpad is an initiative taken by Newton School for people who want to start coding from scratch and learn basics of different programming languages absolutely for free. This video will, will be available with Launchpad and Newton School, where you can practice quizzes. In the last video, I left you with a question. उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन कहता है कि बेस्ड ऑन करंट आवर्स स्पेंड ड्यूरिंग द डे हमें ग्रीटिंग प्रिंट करनी है कंसोल में। एग्जांपल्स थे कि अगर 10 आवर्स हो चुके हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, सुबह के या दोपहर के 2 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, we have to print greeting according to the hour spent. So let's try to solve this. Let current hours is equal to, let's say, 10. How will I go about writing these conditions? If statement लिखूंगा, उसके अंदर मुझे condition लिखनी होती है. What should be the first condition? To understand that, let's understand the question a little bit more. हमारे पास ये 4 इंटरवल हैं। मॉर्निंग का इंटरवल है, इवनिंग का इंटरवल है, नाइट का, so on. We have these 4 intervals. What do these intervals look like? Morning interval is 0 to 12 hours, and 12 should not be included. Let's write that 12 not included. You could have taken that any interval, doesn't matter. It's just that you should understand कि intervals हैं यहाँ पे। ऐसे ही आफ्टरनून का इंटरवल will start from 12 included, and go to 4, which is 16, and 16 again, 16 not included. Let's use the mathematical notation. 0 को include करूंगा मैं, and I will not include 12. So mathematical notation use कर रहा हूँ। अगर उसको include करना है तो parenthesis नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर इंक्लूड नहीं करना तो रेसेस है। आफ्टरनून, and similarly we have evening. Evening should start from 16, let's say, till 8, which is 20. Night के लिए I'll say 20 till 0, where 0 is not included. ठीक है, तो करंट आवर्स मेरे पास 10 है, तो मैं पहला इंटरवल कैसे लिखूंगा? या इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, एंड इट शुड बी लेस देन 12, बट नॉट इक्वल टू 10. दिस इज द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन फॉर मॉर्निंग. मैथ्स में हमारा लिखने का एक तरीका है इस चीज को, 0 इक्वल, लेस देन इक्वल, करंट आवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0 या फिर उसके इक्वल होगा, या फिर इट शुड बी लेस देन 12 एंड नॉट इक्वल टू. मैं लेस ले रहा हूँ, इक्वल नहीं ले रहा, तो ऑब्वियसली दैट इज द कंडीशन, एंड दिस लुक्स लाइक इट विल वर्क. एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है. So our current time is 10 hours, so this should go in this condition. But does it work even when it is not part of this condition? क्या ये condition ठीक से काम कर रही है? You see that 16 के लिए भी true आ रहा है,
So what JavaScript is actually doing यहाँ पर, ये जो पहली कंडीशन है इसको पहले रिजॉल्व कर लेती है. 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है. और ट्रू को फिर 12 से कंपेयर करती है, क्या ट्रू 12 से कम है? तो हमें पता है कि ट्रू नंबर में कन्वर्ट होगा. कंपैरिजन में हमने देखा था कि जो भी हमारी वैल्यूज या वेरिएबल्स होंगे लेफ्ट साइड राइट साइड पे, दे आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू नंबर्स. तो ट्रू इज कन्वर्टेड टू 1 and 1 is going to be less than 12. So this condition is always true. It turns out इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं. तो कैसे लिखें फिर? We have to split this condition into two separate conditions जहां पर less than या less than equal अलग अलग यूज हो रहा है. We can't really club them together in one single statement. उसके लिए JavaScript provides this and. ये दो बार एम्परसेंड लिखते हैं ना, तो एंड होता है वो. That represents composite, like combining two conditional statements. कि ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए. Only then the whole thing will be true. It should be current hours is less than 12. अब ये इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा, ये मॉर्निंग इंटरवल, कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू करंट आवर्स एंड लेस देन 12. Let's try to run this. 16 है हमारा hours. This should be false. अब मेरे पास नहीं आना चाहिए गुड मॉर्निंग. That's right. So what was the trick here? कि हम दो ऑपरेटर्स जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को क्लब नहीं कर सकते एक ही स्टेटमेंट के अंदर. If we have to make two comparisons on a single variable, हमें उसे and करके लिखना पड़ेगा. Let me tell a little bit about and. तो ये and operator is a logical operator. और ये काम कैसे करता है? तो I'll tell you the flow for it. इसी एग्जांपल को देख लेते हैं. इसको मैं नीचे ले आता हूँ एंड अलग से इसको पोस्टमार्टम करते हैं इसका. सो वी हैव दीज टू कंडीशंस एंड के बीच में. ये दो कंडीशंस, आई एम सॉरी, ये दो कंडीशंस है हमारे पास. और इसके अंदर हमने कहा कि इन दोनों कंडीशंस को क्लब करके आउटपुट देता है वो ट्रू या फॉल्स. हाउ डज दैट वर्क? पहली कंडीशन को इवेलुएट करता है, क्या वो ट्रू है, एंड ओनली देन इट इवेलुएट्स द सेकंड कंडीशन व्हिच इज दिस वन, वाई. ये तभी इवेलुएट करता है जब पहली कंडीशन ट्रू है. अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देता है. सो इफ यू सी व्हाट इट इफेक्टिवली इज डूइंग, मैं इसमें और भी डाल सकता हूँ condition. I can club as many conditions as I want. So what it's going to do is it returns the value of first false statement. ये false नहीं है, ये false नहीं है, ये false नहीं है, ये false नहीं है. अगर सारी false नहीं होगी तो ही वो true return करेगा. इनमें से कोई भी अगर false होगी तो वो false return कर देगा. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया आई थिंक. लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल कि दो कंडीशन स्टेटमेंट्स को क्लब करने के लिए हम ये एंड ऑपरेटर डालते हैं. एंड इस सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम बाकी इंटरवल्स रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. दिस इज समथिंग रॉन्ग. यहाँ पे 24 होना चाहिए, राइट? 0 नहीं होगा. 0 से कम होगा, 20 से ज्यादा होगा. 0 से कम ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना. तो दैट कंडीशन इज रॉन्ग. यहाँ पे 24 होना चाहिए. तो दीज आर अवर कंडीशंस फॉर रिप्रेजेंटिंग दीज इंटरवल्स. हमारे पास कंडीशन आ गई. अब इफ इफ और एल्स, इनको क्लब करके आप मल्टीपल कंडीशंस कैसे लिख सकते हो एक ब्लॉक में? वी राइट एल्स इफ, फिर सेकेंड कंडीशन इज दिस वन and this represents afternoon. Similarly, copy paste. The good part is things are not changing a lot, so we can just copy paste and do it. 20 नहीं होगा, ये 16 होगा as we have written below. 16 and 20. Similarly, the last condition.
which is 20 and 24. There is something missing here. हमने एल स्टेटमेंट नहीं लिखे है यहाँ पे. What will happen हम एल स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो? हमने सारे तो कवर कर लिए हैं, 0 से लेके 24 आवर्स किसी ना किसी ब्लॉक में लाई करेंगे. डू यू सी एनीथिंग मिसिंग कि कोई भी नंबर मैंने मिस किया है यहाँ पे? नहीं, राइट? 0 से 24 में. बट अगर 0 से 24 के अलावा कुछ भी होगा तो क्या करना है? वी शुड से राइट, दिस इज एन इनवैलिड टाइम. So that is what else is used for. It's like a fallback. अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलती है हमें तो हम एक fallback प्रिंट कर देंगे. The value that you gave me is an invalid time, invalid hours, right? And there is one more thing to notice here कि ये सारे के सारे interval mutually exclusive है. There is no set of numbers which come common to each interval. हमने देखा था अगर वो कॉमन हो जाता है, लेट्स से इसी को कर देते हैं कॉमन, लेस देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू. अब 12 के लिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. विच वन डू यू थिंक विल रन? विच आउटपुट शुड आई गेट? गुड मॉर्निंग आएगा, गुड आफ्टरनून आएगा? देखते हैं. वी हैव कवर्ड दिस ऑलरेडी, जस्ट विल डू इट अगेन. गुड मॉर्निंग. सो पहला स्टेटमेंट जो ट्रू इवैल्यूएट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है एंड जावास्क्रिप्ट comes out of this if else. ये पूरा का पूरा ब्लॉक किससे बाहर आ जाता है, इसका काम यही खत्म हो जाता है. एक भी स्टेटमेंट ट्रू मिल जाती है वो एग्जीक्यूट होती है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू मिल जाती है वो एग्जीक्यूट होती है एंड जावास्क्रिप्ट कम्स आउट ऑफ दिस ब्लॉक. व्हाई आई एडेड दिस एल्स ब्लॉक इज फॉलबैक. अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर दे देता हूँ दैट इज इनवैलिड. नो, -1 क्या होता है? अब मैं इसकी जगह 25 दे देता हूँ, 26 दे देता हूँ, उसके लिए भी इनवैलिड. तो टू हैंडल दीज सिनेरियोज कि मेरा वैलिड वैल्यू नहीं है, उसके लिए हम एल्स ब्लॉक यूज कर लेते हैं. दैट इज हाउ वी राइट इफ एल्स ब्लॉक. आई होप इट मेक सेंस. कुछ क्वेश्चंस हो तो बताना. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड टर्नरी ऑपरेटर्स. टर्नरी ऑपरेटर्स आर समथिंग सिमिलर टू कंडीशनल ब्रांचेस ओनली. दिस इज अनदर वे टू राइट कंडीशनल ब्रांचेस. इफ एल्स तो हमने देख लिया कि इफ एल्स यूज करके हम ब्रांचेस कर सकते हैं, ऐसे टर्नरी ऑपरेटर. तो टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट हैज 3 ऑपरेंड्स. लिखते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है? क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मार्क, दिस इज द मेन ऑपरेटर इन योर टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट. फॉर्मेट होता है कंडीशन. ये कंडीशन लिखते हैं क्वेश्चन मार्क से पहले. इसी कंडीशन को जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है एंड इफ दैट एग्जीक्यूशन इज रिजल्टिंग टू ट्रू, तो ट्रू स्टेटमेंट, ऑन ट्रू स्टेटमेंट ऐसे बोलता हूँ, ऑन ट्रू स्टेटमेंट. एंड देन कम्स दिस डबल कोलन, आई डोंट नो व्हाट, 2 बार ये जो डॉट्स हैं ये आ जाते हैं, ऑन फॉल्स स्टेटमेंट. तो कंडीशन अगर ट्रू आएगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स आएगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. We can replace if statements and else statement with this ternary operator. लेकिन it takes a hit on readability of the code. थोड़ा difficult लगता है read करना. इसमें काफी segregated blocks हैं, if else if else if. इसमें बहुत difficult हो जाएगा. अगर ज्यादा conditions होंगी, I'll show you कि इस code को मैं ternary operator के साथ कैसे लिखता हूँ. First, let's write some basic statements with this ternary operator. Do you remember the examples from Big Basket wala and Gmail? Ki Big Basket wants to enforce a minimum order. Let minimum order is equal to 500. Let current order is equal to 200. So I want to say कि अगर order ज़्यादा है तो place कर दो, नहीं है तो मत place करो. So the way I'll use the ternary operator to write that statement will be current order is greater than or equal to. I'm fine with equal to as well. Minimum order. If this statement is true, then place the order. Place order. If it is false, do not place order. कंडीशन लिखा, ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है, बस इतना ही है टर्नरी ऑपरेटर में. तो अभी क्या वैल्यू आएगी इसकी? करंट ऑर्डर 200 है तो फॉल्स आएगी, तो डू नॉट प्लेस ऑर्डर आ जाएगा. ओके, तो एरर आ गया. एरर किस लिए आया है? क्योंकि मैंने कंडीशन डिफाइन नहीं किया है.
I have to remove this structure and run it again. So do not place order क्योंकि कम वैल्यू है, इसको मैं increase कर देता हूँ to 600. Now it should place the order. That's it, as simple as that. I promise कि ये पूरा if else statement जो हमने लिखा है कि ternary operator में भी लिखूंगा. So I went ahead and wrote it offline. And ये पूरा कोड ternary operator में ऐसा दिखता है. Just compare it. It's really difficult to read. Complex branches लिखने ना, we should avoid writing using ternary operators. We can potentially replace if else एकदम completely with ternary operators, but it becomes a little hard to read. So we'll prefer to write only if else most of the times. अगर कुछ ऐसे simple से conditions है ना, जैसे हमने minimum order वाला देखा, which is one liner. इस case में it's fine, ternary लिख लो. There's not much to read, so it's fine. That covers if else statement and ternary operators. I also mentioned this AND operation, right? Logical operations. So I want to spend some time explaining what it is. We'll keep it short and we'll call it a day. We'll talk about three logical operators. Logical operators इस context में conditions को club करने के काम आते हैं. हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि दो conditions को club करने के लिए हम AND use कर रहे थे. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, दे आर यूज्ड टू क्लब मल्टीपल कंडीशंस टुगेदर. वो क्लब कैसे करते हैं, दैट चेंजेस विद दीज ऑपरेटर्स. तीन ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे. एक एंड है, एक और है, और एक नॉट है. नाम काफी इंट्यूटिव है इनके. वंस आई एक्सप्लेन इट आई थिंक इट विल लुक वेरी ऑब्वियस टू यू. एंड क्या करता है, मल्टीपल, it will give me true only if all the conditions evaluate to true. उनमें से कोई भी एक अगर false है ना, तो वो false return कर देता है. So we can club conditions like condition 1 and condition 2 and condition 3 and condition 4. So it will club all the conditions together. अगर सारी की सारी true हैं, तो ही इसकी output true आती है. नहीं तो let's say condition 1 is true, condition 2 is true, but condition 3 is false. So it will return a false. And उसके आगे वो evaluate ही नहीं करेगा. As soon as it finds one false value, it will stop evaluating other conditions. और ऑपरेटर वर्क्स एकदम अपोजिट इसका. ये कहता है कि एक भी अगर ट्रू आ जाती है, दैट वैल्यू इज ट्रू. जब तक ट्रू नहीं आता वो चेक करता रहता है कि फॉल्स कब तक आ रहा है. As soon as it gets a true, it returns it. So let me replace it with or यहाँ पर and show you how it runs. So let's say condition 1 is true. तो आगे वो चेक ही नहीं करेगा, और बस कंडीशन 1 ट्रू है तो बोल देगा हाँ ठीक है, माय इवैल्यूएशन विल रिटर्न एज ट्रू. अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इट विल कीप ऑन सर्चिंग की ट्रू वैल्यू आ जाए. कंडीशन 4 पे भी ट्रू वैल्यू आ रही है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा. सो एंड क्या कर रहा था, एंड वाज ट्राइंग टू फाइंड द फर्स्ट फॉल्स वैल्यू. जैसे ही फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, नहीं तो इट विल कीप इवैल्यूएटिंग ऑल द कंडीशंस until it exhausts all the conditions. And or operator first true value return करता है. जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाती है वो रिटर्न कर देता है और आगे एग्जीक्यूट नहीं करता है. एंड व्हाट अबाउट द नॉट, नेगेट कर देता है. जो भी हम इसको आगे वैल्यू देंगे ना, उसको वो नेगेट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑफ अनडिफाइंड. सो ये इवेल्युएट कैसे होता है, अनडिफाइंड को पहले बूलियन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ये नॉट ऑपरेटर उसको नेगेट कर देता है. वो अनडिफाइंड बूलियन में फॉल्स होता है एंड फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है, तो दिस विल रिटर्न ट्रू. इसके आगे मैं एक और नॉट लगा सकता हूँ विच विल अगेन नेगेट द आउटपुट. तो मेरे पास इतना एक्सप्रेशन का आउटपुट ट्रू आया था. दिस वाज फॉल्स, उसका नेगेट ट्रू था, उसका नेगेट अगेन इज फॉल्स. So these are the three logical operators and we can club all the conditions using these operators. So there is a difference between and or and not. Not सिर्फ एक ही वैल्यू पे काम करता है, whereas and और ये और दो वैल्यूज लेते हैं. So it's a unary operator, this not, and this is a binary operator. ठीक है, I hope you understand कि ये तीन logical operators काम कैसे करते हैं. If you have any questions, please post them on the comments below. Thank you so much. Take care.